बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शुएब साहब, डायरेक्टर CFA, President Sajjad Anwar साहब, it's a great pleasure and honor to be back here with the industry icons, industry leaders, industry participants, very worthy winners of the various categories that you're going to mention a bit later. मैं पिछले साल भी एक CFA के इवेंट में हाजिर हुआ था in a different capacity, because by the time you get to CFA level 3, जो भी आप उसको समझते हैं, you're the best analytical minds which are there, which are available. This goes beyond emotion, beyond imagination, where all of you talk about the fact base, not sensationalism, fact base. Fact base where we are today, fact base where we are going to be tomorrow and day after. तो इसलिए ये हमेशा एक मेरे लिए बहुत important forum रहेगा to come and talk about the fact base. क्योंकि आप सब industry participants हैं, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा background देने की ज़रूरत नहीं है कि over the last sort of 12 to 18 months, where we were and where we are in terms of the macroeconomic stability. आप सब लोग उसको दिन रात देखते हैं. Where we finished the last fiscal year in terms of the twin deficit, very much in control, the currency stability, the foreign exchange reserves, or जो inflation coming down from 38% to at that point in time where it came down to at the end of the last fiscal year. और देखिए मैं इसलिए ये बात करता हूँ बार-बार macroeconomic stability की, because that has continued into, alhamdulillah, we are now into the first quarter of this fiscal year. Or before I get into the fund discussion, why is macroeconomic stability required or needed? Because मुझे इस मुल्क में वापस आए हुए तकरीबन 6-6.5 साल हो चुके हैं. And even in that short period, I've seen everything being tried. Not going, delaying, or figuring out how we are going to manage them in a strong manner. So we have tried every possible model in this country. तो इसलिए I think ये ज़रूरी है कि हम उन मॉडल से आगे निकलें. मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी से आगे ग्रोथ का मॉडल चलता है. There is no automatic switch from one day saying कि stability आ रही है या आ सकती है और फिर हम उसका growth का engine चला दें. Because ये तो अब आप सब चूंकि खुद fact based हैं और आप खुद ये models देखते हैं, तो I think now it's very clear कि beyond 4%, the moment we put the step on the pedal, because the DNA in our economy is import based, we run out of foreign currency and therefore we have to run back to the lender of the last resort. And therefore, we have to work on changing the basic DNA of the economy. अब उसमें जो 9 months standby arrangement successfully conclude हुआ, उसमें I always give credit to the caretaker administration. I always give credit to Dr. Shamshad as the caretaker finance minister in terms of maintaining
the rigor and vigor and the discipline that's required. Because अभी भी जो हम प्रोग्राम में जा रहे हैं या जा चुके हैं, अगर आप स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, अब सब ऐसे लोग हैं जो एनालिटिकल माइंडसेट रखते हैं, जब ये इंशाल्लाह 25 को ये प्रोग्राम अप्रूव हो जाएगा, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि जाकर ये डॉक्यूमेंट पढ़िए। और जब आप ये देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, नॉट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है कि कितना रेवेन्यू आना है, कितना नहीं आना, उसमें भी बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट्स पार्क दैट फॉर अ मोमेंट। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, व्हाट आर स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स? जो 3 एरियाज हैं, टैक्स टू जीडीपी 9-9.5% पे नहीं हम सर्वाइव कर सकते एज अ कंट्री। वी हैव टू टेक इट टुवर्ड्स 13% टू और हायर टू बी इन द कमिटी ऑफ नेशंस। और उससे मैं वापस आता हूं, बिकॉज ये कहना तो मैं हमेशा बाहर भी बैठ के, यहाँ टब्बा साहब बैठे हैं, उनके बाद मैं सक्सीड किया है चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, बाहर बैठ के ये डिस्कशन करना, और मैं करता रहा हूँ the what and the why part of it, because we have known the what and why part of it not for years, for decades. We just don't do it. The how part of it and the who part of it. तो अभी मैं आपको सबको इनकरेज करूंगा, जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख के बाद, तो ये जाके डॉक्यूमेंट पढ़िए और उसमें देखिए कि कौन से स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं जिन पे हमने अब साइन किया है, जो पिछली 4 या 5 मेरे प्रेडिसेसर्स नहीं साइन कर सके। मैं कहूंगा कि 19-20 नहीं है, ये 18-20 का फर्क होगा, बिकॉज नाउ वी आर इन एक्सटेंडेड प्रोग्राम, बट वी हैव साइंड एंड वी हैवंट डन इट। टैक्स टू जीडीपी on the energy side, what we said we will do on the power sector side, we didn't do it. And the SOE reform, ये 1 trillion का drag है on the country's exchequer, which we have deterred because we have said, ready, get set, stop. And we have to stop this discussion. और जो अभी बात होती है, why would the 24th program be the last program, is simply because of this, कि ready, get set, stop नहीं कर सकते हमें। ready, get set, go करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो 25th प्रोग्राम में जाना ही पड़ेगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। और उसमें देखिए, मैं जो टैक्स टू जीडीपी वाली बात है उस पर मैं ज़्यादा थोड़ा सा बात करूंगा। आई नो जी, आपका वक्त जो है बड़ा कीमती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग ये इतनी बातें करते हैं कि जी आप 29% पिछले साल ये टैक्स रेज हुआ, इस साल 40% है, ये कैसे 40% होगा? और बात दुरुस्त है, क्योंकि जो अभी जून और जुलाई की बात हो रही है, वी आर गोइंग इनटू सितंबर, इट हैज टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स। जितने भी यहाँ सैलरीड क्लास वाले हैं, मैं भी सैलरीड क्लास से आया था, मैं दोबारा ये कहूँगा कि मेरी आई अप्रिशिएट द पेन। इसी तरह अभी इतनी हम सारी बातें कर चुके हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं विच कंट्रीब्यूट टू जीडीपी और कितना वो टैक्स देते हैं। 43% of the people who contribute to GDP pay less than 1%. It's simply not sustainable. मैं बार बार ये कहता हूँ कि चैरिटी से मुल्क नहीं चलते, ये टैक्सेस दे के मुल्क चलाने पड़ेंगे। So we are where we are, उसके डिफरेंट सेक्टर हैं और आप सबको उनके चीज़ों के बारे में इल्म है। जो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, देखें डिजिटलाइजेशन का सिर्फ फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, डिजिटलाइजेशन इज नॉट एन एंड, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। मेरे पे डेटा मौजूद है, मेरे पे डेटा मौजूद है। यहाँ से पीर साहब बैठे हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज इज पार्ट ऑफ द डिजिटलाइजेशन टास्क फोर्स जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट ही इज स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दैट, बिकॉज वो डेटा तो मौजूद है कि मैं मेरा कितने यूटिलिटी बिल्स हैं, मेरे पास कितनी कारें और व्हीकल अवेलेबल हैं, मैं कितने फॉरेन ट्रिप्स करता हूँ, वो सारा डेटा मौजूद है, और मैं टैक्स कितना देता हूँ। नाउ वी हैव टू कनेक्ट द डॉट, नंबर 1। नंबर 2,
जिसमें आसिफ पीर साहब हमें हेल्प कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी ए सेंट्रल यूटिलिटी, बिकॉज अगर मेरे पे ये रॉ डेटा भेज दिया जाए इनटू फील्ड फॉर्मेशंस, देन द फील्ड फॉर्मेशंस विल डू व्हाट वी डू, बिकॉज सारा डिजिटलाइजेशन का जो हमारी डिस्कशन है वो डिस्कशन ही है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी। ह्यूमन इंटरवेंशन का क्या मतलब है कम होगी? इसका मतलब है करप्शन कम होगी, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू, बिकॉज इट टेक्स टू टू टैंगो। और मैं जितनी भी एसोसिएशंस के बाद जा रहा हूं, क्योंकि अगर हम एफबीआर में आपसे पैसे मांगते हैं, आप देना बंद करें। जब आप देना बंद करेंगे, हम लेना बंद करेंगे। एंड वी विल थ्रू दिस डिजिटलाइजेशन एफर्ट विल इंश्योर कि हम वो आपके पास ऐसी चीजें लेकर जाएं। देखें, मैं एक बात करता हूं, मैं अब 6 साल से मैं भी यहाँ सैलरीड क्लास पर्सन था। ये कैसे हो सकता है किसी मुल्क में कि जब आपका टैक्स सोर्स पे कट रहा हो, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट आप में से जितने भी CFAs हैं, कुछ और हैं, you are tax advisors, you are you are also on the law side advisors, लेकिन अगर एक सैलरीड क्लास पर्सन को आप सबकी एडवाइस की जरूरत है कि आपने फॉर्म भर के कैसे FBR को पेश करना है, तो then we have something very fundamentally wrong. It's not only about automation, it's about the process. We have to simplify that form. जिन मैं jurisdictions में काम करके आया हूं, जब वो jurisdiction मुझे एक as a salaried person मुझे भेजती थी, तो मुझे ये कहती थी कि जी ये आपका टैक्स रिटर्न है, अब आज मुझे बता दीजिए आपने कार खरीदी, कार बेच दी, आपने कोई घर खरीदा, घर बेच दिया, अगर वो है तो वो हमें बता दीजिए, बाकी let's consider the return finalized. That was it. तो हम वो निर्वाणा है, we have to move in that direction, but that's where we are going to go. और इसीलिए जो अंडर टैक्स अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं, with due respect मैं बार बार ये कहता हूँ, our hand has been forced as a country. अगर आप step up नहीं करेंगे in paying your taxes, doesn't matter whether I'm here, any administration is there, any government is there, we will unfortunately will have to keep on going back to the same for more, and therefore our hand has been forced, और ये अब आगे हम चल नहीं सकते। जो पावर पे बात हो चुकी है SO रिफॉर्म्स पे, देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, because I chair the cabinet committee on SOEs. We are very, very clear, and the Prime Minister is very clear. Government has no business in being in business, period. Anything that can be done in the private sector should be moved across to the private sector. और इसमें बड़ी बहस हुई, बड़ी चीजों पे बहस हुई, including the insurance industry. भाई जो चीज आप कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, हम उसको क्यों रखेंगे in the public sector? So we have moved it across. This is going to be in the privatization regime, and inshallah we will take it forward. Or public finances. This is a very important subject. Because सब लोग कहते हैं कि जो टैक्स आप दे रहे हैं तो आप अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इसमें जो राइट साइजिंग हो रही है, और इसमें मैंने कल भी कहीं जिक्र किया था कि डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने बड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की थी into the PTI cabinet at that point in time, which is back in July 2019. It never saw the light of the day. डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हैं, हमारे से नाराज होकर निकले हैं, लेकिन इन दोनों की जो रिपोर्ट्स हैं हम इनको आगे लेकर जा रहे हैं, बट इट हैज टू बी बाइट साइज। हमने 6 मिनिस्ट्रीज देखी, उनके आगे इंप्लीमेंटेशन प्लान ला रहे हैं, हम अगली 5 मिनिस्ट्रीज देख रहे हैं, उनके इंप्लीमेंटेशन प्लान लेकर आएंगे। वी आर वेरी क्लियर कि जहां इसको डाउन साइज करना है, राइट साइज करना है, 18th अमेंडमेंट के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास जो इदारे नहीं होने चाहिए, जो मिनिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, उनको डिवॉल्व करना चाहिए। मैं आज चीफ मिनिस्टर साहब सिंध के साथ मौजूद था, एंड ही ऑब्वियसली इंडोर्सेस दिस, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात शुरू में की थी पार्लियामेंट में कि ये जो 17 या 18 मिनिस्ट्रीज हैं इनको डिवॉल्व होना चाहिए, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। There's no point in keeping this in the federal government unless there's a regulatory element, etc. PSDP पे आपने देखा है कि हमारा बड़ा clear view है कि everything should go towards public-private partnership, जहाँ तक हो सकता है। और the pension,
क्योंकि ये बात ये होती है कि जी आपने कुछ किया आपने नहीं किया। मैं वो बात कर रहा हूं, pension is a ticking bomb, is a ticking bomb in terms of unfunded liability at the federal level, and then even before we get to the provincial level. तो हमने क्या किया at the federal level? At least going forward हमने bleeding उसकी stop की है। अब ये लोग कहते हैं कि आपने कुछ किया नहीं किया, ये किया हमने कि any new employees coming into the federal government will go on to defined contribution. Armed services have asked कि हमें 1 साल और दें, और उनकी बात समझ आती है बिकॉज उनका सर्विस स्ट्रक्चर ऐसा है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन से वो आगे बात नहीं चल सकती, तो वो हम इसको आगे लेकर गए। द लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन इज हाउ डू वी गेट आउट ऑफ हियर। देयर हैज टू बी रोड टू मार्केट। तो जो मैंने पहले बात की थी, द डीएनए ऑफ द इकोनॉमी, इट हैज टू मूव अवे फ्रॉम इंपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। We are done with import substitution. We will not give further subsidies. We will not give further credits. We will not give further approvals to various industries simply because के जी हम import substitution कर रहे हैं. Everyone has to contribute towards exports. Number one. Number two, जो FDI आ रही है, and we are very grateful to everyone who comes in and helps us. Uspe in the cabinet, I'm very clear that those FDI has to be led with those projects जो export led हो. ये currency mismatch जहाँ हम loans लेते हैं, जहाँ हम FDI लेते हैं, on PKR based projects, we cannot afford anymore. I've been very clear, and I will continue to be very clear in the cabinet as well. The last thing is accessing back into the international capital markets. तो वो आपको मालूम है, I'm very grateful to the banks which have already stepped up and stepped in to help us even in this fiscal year. And as the ratings improve, inshallah, the next fiscal year will be a good year in terms of international capital markets. My only view is that at this point in time, अगर हम Panda bond को is the inaugural issue that we would do in the Chinese bond market. If we can do that, that will be a good start back into the international capital market. ये तो सारी वो बातें हैं जो आज की हैं और अभी की हैं, but it affects all of us in terms of our livelihoods, cost of living, and these are real issues. As the inflation comes down, as the policy rate comes down, I think these are very important things, क्योंकि हमने इस इकोनॉमी का पहिया आगे चलाना है. We have to move from stabilization to growth. और उसमें दो सेक्टर्स जो हैं, एग्रीकल्चर एंड IT, I keep on saying these are two sectors which are totally in our control, have nothing to do with the fund, nothing to do with any other thing between financing, policy making, yield enhancement, etc. ये सब हमारे हाथ में है. और लास्ट चीज जो कोई उसका जिक्र नहीं करता या उतना जिक्र नहीं करता, उसकी वजह जो मैंने पहले जिक्र किया इज लाइवलीहुड्स एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि हमने आज कल और परसों को देखना है. बट टू एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स when certainly I would be gone, a lot of it might be gone, the young and the restless are still going to be around. और मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ. Population. It's not a ticking bomb, it's a bomb which has exploded. At 2.55%, 3.6% in the urban areas. No one talks about it. We do need to take it very seriously and make it as much of an imperative as we worry about कि ये IMF का प्रोग्राम ये जुमे को आना था या अगले थर्सडे को आना है या 25 को आया है कि नहीं आया है. It's as real as that. And the other thing is climate change, because that is affecting us as we speak. And I'm very determined that ये दोनों ऐसे areas हैं जिनको हमें साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा as we go forward. I'm, ladies and gentlemen, once again grateful for the invitation and for your patient hearing. Thank you.